Vijay Joshi hails from a family of fard artists from Shahpura in Rajasthan. He trained under his father, the National Award winner Shanti Lal Joshi. He follows the family tradition of fard painting and training and runs Fard Painting Training and Research Institute in his hometown. He has been exhibiting, demonstrating, and conducting workshops all over India and abroad and has been part of many fairs and festivals. He has received awards and appreciation certificates and has been honored for his work. Articles have been published in newspapers and magazines in India and abroad. His works are in the collection of Birla Academy of Art and Culture in Kolkata, Museums of Art in the Netherlands, Amitabh Bachchan in Mumbai, Aziz Premji Foundation in Bangalore to quote a few, and many more. The Shahpura Nonpareil Fard art is a type of religious scroll painting and folk art practiced in Shahpura, Rajasthan. The canvas is specifically and specially prepared. The natural colors used are handmade, which binds the artist into this beautiful journey of painting, becoming a part of the process. The technique is laborious, but the outcome is mesmerizing. The colors are bright, fresh, and rejuvenating to the eye and the soul of the viewer. The mythological stories and Hindu gods depicted transport one to the mystical world of divinity, engulfing and enriching one with their serene energies. I am the 13th generation practitioner of this style and entered the Shahpura school at the age of 9, where fard painting was taught. These paintings will travel with you as a running temple because they constitute every symbol, every motif that exists portraying the Hindu deities. These are narratives that were, in the past, carried by priest-singers of the Rabari tribe who performed stories of their local deities from epics. The uniqueness and novelty of my fard paintings are primarily based on the mythological stories related to being lives and achievements of various Hindu gods such as Babuji, Devnarayan, Ramdala, Krishnadala, and Mataji ka Chandwa, says Vijay. नमस्कार, मैं विजय जोशी, फड़ चित्रकार शाहपुरा से। फड़ क्यों कहा जाता है? इस जो एक लॉन्ग कैनवास होता है, इसको फड़ क्यों कहा जाता है? फड़ का मतलब होता है पढ़ना, चित्रों के माध्यम से कहानी को पढ़ना या गा करके सुनाना। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं चित्र, वो एक पूरी कहानी है जो कि 5 into 18 फीट लॉन्ग बाबूजी जो एपिक्स राजस्थान में हुए थे, उनकी शौर्य गाथाओं का चित्रण किया गया है। एक लंबे कैनवास के ऊपर, जिसके अंदर प्राकृतिक कलर से हम उसको तैयार करते हैं, कपड़ा और कैनवास जो होता है हम खुद तैयार करते हैं और उस पर जो नेचुरल कलर्स है उनसे द्वारा हम बनाते हैं। फड़ का मतलब क्या? फड़ का मतलब पढ़ना, चित्रों के माध्यम से कहानी को पढ़ना या गा करके सुनना। एक चित्र होते हैं जिनको बोबा एक कम्युनिटी होती है, वो कहानी को बताती है कि बाबूजी क्या थे, उनकी क्या क्या कहानी थी, क्या क्या गाथाएँ थी और उन्होंने क्या क्या किया था। वो एक पूरी कहानी को वो गा करके बताते हैं। इसका प्रचलन कब से हुआ, क्यों, क्या कारण रहा कि ये फड़ बनी? पहले जो बोबा कम्युनिटी थे, जो गाने वाले थे, उनके पास में चित्र नहीं थे, तो वो हमारे पास आए, हमारे पूर्वजों के पास आए, क्योंकि हमारे पूर्वज पूरे वर्ष भर के पंचांग बनाते थे। तो उन्होंने हमसे अप्रोच किया और बोले कि हम जो कहानी को गाते हैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, कोई इतना भाव नहीं आता, तो हम आपको कहानी बताते हैं, तो आप चित्रों में उनको बना दीजिए। तो जैसा जैसा उन्होंने कहानी को बताया, वैसा वैसा हमारे पूर्वजों ने इस चित्रों में उनको बना दिया। तो फड़ चित्र ऑडियो विजुअल का जो ज़माना आप कहेंगे तो देखेंगे तो हमारे उसी समय से चला है। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए एक मानस पटल के ऊपर सबसे बड़ा जो चित्रों के माध्यम से किसी चीज़ को समझाया जाता है, तो वो जल्दी से समझ में आती है। तो वो चीज़ें ऑडियो और विजुअल, क्योंकि विजुअलाइजेशन हमारे द्वारा दिया गया, तो ये सारी चीज़ें उसी समय हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई। अब इसमें क्या क्या कहानियाँ बनती हैं? तो जो गाने वाली जो कहानी होती है वो होती है बाबूजी और देवनारायण की, जो लोक देवता हुए थे, उनकी शौर्य गाथाओं का चित्रण किया जाता है। बाबूजी लक्ष्मण जी के अवतार थे,
और देवनारायण जी भगवान विष्णु के अवतार। बाबू जी की फड़ 5 इंटू 18 फीट लॉन्ग बनती है और देवनारायण की बहुत बड़ी फड़ बनती है। सबसे देवनारायण 24 बगड़ावतों की महागाथा होती है, तो वो एक बहुत बड़ी होती है 5 इंटू 36 फीट लॉन्ग। और बहुत उसमें कहानी बहुत बड़ी होती है, उनके सारे एपिसोड्स को उसमें चित्रण किया जाता है। देखा गया है और सुना भी है कि जब देवनारायण की फड़ को गाया जाता है या बाबूजी की फड़ को गाया जाता है तो उस शिद्दत से गाते हैं। तो जब वो चारा जो होता है पूला, जिसे घास का जो पूला कहते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिक अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। मतलब इतना तेज होता है, इस कहानी को जब गा करके बताते हैं तो इतना तेज होता है, तो इतनी मतलब कि शक्ति होती है इसके अंदर। तो ये एक बहुत ही अद्भुत कहानियाँ हैं, अद्भुत चीज़ें हैं जिनको मैं और मेरा परिवार पूरा बनाते हैं। मैं 16वीं पीढ़ी का कलाकार हूँ। मेरे पिताजी को इस कला के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। मुझे भी 2003 में नेशनल म्यूजिक यंग फेलोशिप और काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। अभी भी मैं इस कला के अनवरत हूँ और उसी शैली और उसी के अंदर मैं काम करता हूँ। राजस्थान में काफ़ी शैलियाँ हैं, काफ़ी स्कूल्स है, मिनीचर है, मुगल है, नाथद्वारा है, कांगड़ा, बूंदी है, कोटा है, बीकानेर है। ये काफ़ी स्कूल्स है जहाँ अपनी अपनी ढंग से अपने अपने तरीके से काम होता है। कहीं बसली में होता है, कहीं किस में होता है। बट ये एक ऐसी शैली है जिसके अंदर पूरी कहानी बनाई जाती है। इसके अंदर कपड़े के ऊपर काम होता है, 2 सूती रेजी जो होती है उसके ऊपर काम किया जाता है। और कलर्स जो होते हैं वो प्राकृतिक कलर्स जो हम बनाते हैं तो उसके द्वारा काम किया जाता है। तो ये एक अद्भुत शैली है, मतलब बिल्कुल यूनिक शैली है जो दूसरों से कहीं भिन्न है। इसमें पात्रों की जो पहचान होती है वो कलर के माध्यम से होती है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो बाबूजी जिस घोड़ी पर बैठे हैं वो केसर काल में होती है। उन्होंने देवल चारनियों से ये घोड़ी ली थी और देवल चारनियों की ये घोड़ी जो थी वो एक अद्भुत थी, शक्ति का अवतार था। मतलब हजारों लाखों गायों को ये एक ही घोड़ी ऑपरेट करती थी। तो बाबूजी ने जब ये घोड़ी मांगी तो एक ही शर्त पे उन्होंने देवल चारनी को दी कि जब भी मेरी गायों के ऊपर कोई आपत्ति आई या कहीं कुछ हुआ तो आपको किसी भी हाल परिस्थिति में हो आपको मेरे यहाँ आकर के उन गायों की रक्षा करनी होगी। तो फिर वचन लिया। सांभर का जो एक नमक होता है तो उसको लेकर के उन्होंने वचन दिया, ठीक है, जो भी होगा, जैसी भी स्थिति में आऊँगा मैं आपकी गायों के लिए। इसी शर्त पे बाबूजी ने यह घोड़ी ली। जब बाबूजी 3 फेरे ले रहे होते हैं, तीसरे फेरे में राठौड़ राजपूत लोग अभी भी 3 ही फेरे लेते हैं, तो 3 फेरे ले रहे थे तब उनकी जो गायें थी देवल चारनी की, तो वो लेकर के जिंगराव खींचे चला गया था, उनको घेर करके अपने ले गया। तो उसी समय वो उसी पानी में जो मंडप होता है उसको छोड़ करके गायों की रक्षा के लिए चले जाते हैं और उनका बलिदान होता है। तो ये एक कहानी है छोटी सी, और इनमें कलर्स जो होते हैं वो अपने एक आइडेंटिटी होती है पात्रों की। डेमा जी का अलग कलर, चंदा जी का, हरमल जी का एक अलग कलर होगा, उसी से उसको पढ़ा जाएगा, उसी से उसको जाना जाएगा। अगर कहीं मैं बाबूजी को अगर ग्रीन कलर में देता हूँ या दूसरे डिफरेंट कलर में देता हूँ तो फिर वो पात्री चेंज हो जाएंगे, वो फिर बाबूजी नहीं रहेंगे, वो कोई नए हो जाएंगे। बाबूजी का अपनी एक आइडेंटिटी है, बाबूजी की जो नाकनक्श है, जो चेहरा है वो बिल्कुल। इसमें जो चेहरा बनता है वो प्रोफाइल फेसेस ही बनते हैं। बहुत रेयर केसेस में 1-2-3 कुछ फिगर्स होते हैं, माता जी होते हैं और भैरू जी होते हैं जो प्रोफाइल सामने के हम बनाते हैं, बाकी सारे प्रोफाइल फेसेस ही होते हैं। इस पेंटिंग में कभी शेड नहीं लगता, विदाउट शेड होती है। कलर सारे फ्लैट कलर्स में ही काम किया जाता है। इसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। पूरी फड़ को जब बनाया जाता है तो उसको बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखा जाता है। कितने डिस्टेंस पे क्या चीज़ बनेगी, कितने डायमेंशंस पे बनेगी और कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें उसमें बनाई जाती हैं। अभी हम छोटे छोटे पीसेस बनाने लगे हैं, डेकोरेटिव पीसेस, और काफ़ी सब्जेक्ट के ऊपर भी काम करने लगे हैं। तो डिफरेंट सब्जेक्ट जैसे इलोपमेंट ऑफ संयोगिता, बैटल ऑफ हल्दी घाटी,
रिलीजियस सब्जेक्ट, सोशल इश्यूज सब्जेक्ट थे। मैंने 2005 में अमिताभ बच्चन को डिपिक्ट किया। 2018-19 में गांधी जी की पूरी लाइफ हिस्ट्री बनाई थी, जिसमें 5x20 फीट लॉन्ग, जिसमें पूरी इंग्लिश कैलीग्राफी है, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक उनका जीवनोत्तरण को हमने दर्शाया था। गीत गोविंद को बनाया है, जयदेव जी को, और कालिदास के सारे सब्जेक्ट सबने लिए हैं, गणेशा लिए हैं, माता जी के लिए है। तो ये बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट के लिए हमने कोरोना के ऊपर काम किया है। तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर हमने विषयों पर काम किया, गीता, महाभारत, कई ऐसे सोयो सब्जेक्ट के ऊपर हमने काम किया है और हमने इसी शैली में काम किया। मिस्टिक मूड हिना भट्ट आर्ट वेंचर द्वारा जो ऑनलाइन वर्कशॉप हो रहा है, उसमें आप मेरे कामों को देख सकते हैं। और जो एक लोक कलाएँ हैं राजस्थान की, उनको आप इस कैंप के अंदर देखेंगे। इसके अंदर मैंने 2 चित्र बनाए हैं, जिसके अंदर एक गणगौर की सवारी, जो ईसरजी गणगौर जो राजस्थान में काफ़ी प्रचलित है और निकलती है सवारी उनकी। तो जहाँ जहाँ रियासत रही है, जहाँ जहाँ राजा महाराजाओं का रहा है, वहाँ वहाँ से गणगौर की सवारी निकलती है। जयपुर की गणगौर है, हमारे यहाँ शाहपुरा की गणगौर निकलती है, जिसमें पूरे बैंड बाजे और रथ यात्रा, पूरी जो ईसरजी और गणगौर की सवारी निकाली जाती है। एक उत्साह का माहौल रहता है। और दूसरा जो मैंने चित्र बनाया है, वो गीता के 12वें अध्याय के ऊपर मैंने डिपिक्ट किया है। बेसिकली मेरी जो पेंटिंग्स होती है वो लोक देवताओं के ऊपर बनती है, और हमने कुछ नए इसी शैली के अंदर नए चित्र बनाए हैं, जिसके अंदर गीता, महाभारत, नए सब्जेक्ट और नए विषय के ऊपर बनाए हैं। और अपने मन के जो भाव है उनको हमने अपने चित्रों में डाले हैं। इनमें कलर्स और कैनवास हम सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, ये हम खुद ही बनाते हैं, कैनवास भी हम खुद ही बनाते हैं, कलर्स भी हम खुद ही तैयार करते हैं, और उनको एक शैली के माध्यम से शैली के अंदर बनाया जाता है। आप इन चित्रों को देखेंगे, और भी कई चित्र हैं जिनको आप हिना भट्ट आर्ट वेंचर द्वारा वर्कशॉप, जो ऑनलाइन वर्कशॉप है, उसके अंदर आप देखेंगे। आदमी अपने कलाकार जो होता है, वो अपने माध्यम से एक ऊर्जा लेता है, कहीं ना कहीं आध्यात्म में जाता है, कहीं ना कहीं ध्यान और मेडिटेशंस में चला जाता है। ये मेरा एक सशक्त माध्यम है चित्रकारी, जो मैं रात भर और दिन कभी भी कुछ नहीं देखता हूँ। मैं इनमें इतना खो जाता हूँ कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए मुझे कुछ पता नहीं रहता, मैं उसी के अंदर एक हो जाता हूँ। और चित्र को जब तक नहीं बनता तब तक मुझे ऐसी अनुभूति होती है कि भाई मैं कहीं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो जब तक चित्र बनता है और लास्ट तक जब तक बन के निकल जाता है, तो ही एक जो आध्यात्म होता है, एक मेरा जो मेडिटेशंस है, वो सारी चीज़ें हम रात भर इस चित्रों के ऊपर काम करते हैं, और हमें पता ही नहीं रहता कि कलम ब्रश कैसे चल रहा है, कैसे हम उसको कर रहे हैं। तो एक शक्ति जो होती है वो हमें कहीं ना कहीं पुश बैक करती है, और हम चित्र को बनाए जाते हैं। इस शैली का उद्भव, शाहपुरा शैली का उद्भव 700 साल पूर्व मेरे ही परिवार शाहपुरा में हुआ था, मेरे पूर्वजों में। यह अनवरत है, और मैं 16वीं पीढ़ी का कलाकार आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ। और ये मैं थैंक यू बोलूँगा हिना भट्ट जी को, जिन्होंने मुझे ये एक अवसर दिया है अपने चित्र, जो नए चित्र को कैंप के अंदर दिखाने के लिए, और कैंप के अंदर मुझे एक मौका दिया है। तो आप हिना भट्ट आर्ट वेंचर द्वारा ऑनलाइन वर्कशॉप मिस्टिक मूड के अंदर मेरे चित्र देख सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर जाकर के हिना भट्ट आर्ट वेंचर को आप फॉलो और लाइक कीजिए, और इनको देखिए।